आदाब के न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर नगर के फतेह दरवाजा के पास पुलिस चौक का नाम बदलकर इसे पुलिस सेक्शन 1948 सर्कल कर दिया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लगाया केंद्र पर कर्नाटक के साथ कर वितरण में अन्याय का आरोप, कहा करोड़ों का किया नुकसान। शिव कुमार स्वामी को भारत रत्न देने की मांग, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कही ये बात। अधिसूचना से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर सकती है भाजपा, असद ओवैसी के खिलाफ इन्हें बना सकती है उम्मीदवार। झारखंड के रामगढ़ से फिर शुरू हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा, बुनकरों से करेंगे संवाद। धर्मगुरु मौलाना सलमान अजहरी को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार पुलिस विभाग 5 फरवरी 2024 को 10:30 बजे बीदर नगर के फतेह दरवाजा के पास पुलिस चौक को बीदर के ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के सहयोग से फिर से कलर किया गया और इस सर्कल का नाम बदलकर इसे पुलिस सेक्शन 1948 सर्कल कर दिया गया और इस सर्कल का उद्घाटन किया गया। माननीय गोविंद रेड्डी जिलाधिकारी बीदर और चन्ना बसवन्ना एसएल पुलिस अधीक्षक बीदर और डॉक्टर गिरीश दिलीप बड़ोले आईएएस सीईओ जिला पंचायत बीदर ने इस सर्कल के दोबारा नया बनाए जाने पर बधाई दी और कहा कि वाहनों पर यातायात नियमों के प्रति सचेत करने वाले स्टिकर चिपकाने और हेडलाइट सीट बेल्ट के प्रयोग के प्रति सचेत करने का अभियान चलाया गया। सर्कल के पास पुलिस यातायात नियमों को लेकर नियमानुसार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर, अपर पुलिस अधीक्षक मल्लिकार्जुन पुजारी, बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस और ट्रैफिक सर्कल कपिल देव, पालकशया हिरेमठ सर्कल इंस्पेक्टर टाउन पुलिस के साथ पुलिस अधिकारी, पुलिस सहकर्मी और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज के साथ खुसरो अहमद की रिपोर्ट। ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಘಟನೆ ಜೊತೆ ಸತತವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕುರಿತು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಗರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯತೆ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕನ್ನು ಅವರು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಚೌಕನ ಇಷ್ಟು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಮೂಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನಂದರೆ ಬಂದು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕನ ಏನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕ ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯತೆಯ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಂದರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕ್ನ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಆಶಯ ಇತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೀದರ್ನವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ
ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಗಡ್ಡೆ ಅವರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು 102 ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನ ಈಗ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ, ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಬಳಸಬಾರದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕರ್ ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಹಿಂಭಾಗ ಸ್ಟಿಕರ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಗುರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನು ಅಪರಾಧಗಳು ನಾವು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲದರ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಪುರದ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಂಡಾ ಶೋರೂಮ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ದಂಡವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನಂದ್ರೆ रविवार 4 फरवरी को बीदर जिले के औरादबी तालुके में तहसील कार्यालय के औरादबी घटक की ओर से सुक्षेत्र श्री अमरेश्वरा क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें हुमनाबाद, औराद, बसवा कल्याण, हुलसूर, बीदर, भालकी डीसी ऑफिस टीम और सर्वे डिपार्टमेंट टीम ने मैच खेला। इस मैच में जिला अधिकारी और एसपी चन्ना बसवन्ना ने भी क्रिकेट खेला। इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मुकाबला 10 फरवरी को खेला जाएगा, जिसमें भालकी और बसवा कल्याण के बीच मुकाबला होगा और डीसी ऑफिस टीम और औराद की टीम में मुकाबला होगा। उसी दिन 10 फरवरी को दोपहर में 3 बजे फाइनल मैच खेला जाएगा। इसमें जीतने वाली टीम को पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाएगी। औराद से अलीम पाशा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार पर कर हस्तांतरण में कमी कर कर्नाटक के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को कहा कि इससे पिछले 4 वर्षों में राज्य को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र सरकार पर कर हस्तांतरण में कमी कर प्रदेश के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने रविवार को कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य को 45 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान भुगतना पड़ा है। सीएम ने यह भी दावा किया कि कन्नड़िगांव द्वारा जो भी भुगतान किया गया कर है वो राज्य के कठिन समय के लिए उपयोगी नहीं है और पैसा उत्तरी राज्यों में जा रहा है। सिद्धरामैया ने कहा, कर्नाटक को 15वें वित्त आयोग के बाद कम कर हस्तांतरण हिस्सेदारी के साथ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम अपने राज्य के कल्याण को सुरक्षित करने के लिए कन्नड़ी गांवों के लिए उचित उपचार और न्याय की मांग में एकजुट हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसको लेकर तमाम नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को केंद्र सरकार से सिद्धगंगा मठ के संत शिवकुमार स्वामी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। बता दें कि डीके शिवकुमार भी कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बसवना बागेवाड़ी में बसवण्णा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं केंद्र से शिवकुमार स्वामी को भी भारत रत्न देने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि संत ने मानवता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने संत को भारत रत्न देने के लिए पहले केंद्र को पत्र लिखा था, लेकिन फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है। श्रम एवं धारवाड़ जिला प्रभारी मंत्री संतोष लाड ने कहा कि कई जान समर्थक योजनाएं लागू करने के बावजूद भाजपा राज्य में कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। वे शहर के रेलवे ग्राउंड में शनिवार शाम को जिला प्रशासन, हुब्बल्ली धारवाड़ महानगर निगम की ओर से हुब्बल्ली धारवाड़ पूर्व विधानसभा क्षेत्र और हुब्बल्ली धारवाड़ सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र में गारंटी योजनाओं के पर्याप्त कार्यान्वयन पर आयोजित गारंटी सम्मेलन का उद्घाटन कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। भाजपा ने तंज कसते हुए कहा था कि गारंटी योजनाओं के लिए पैसा नहीं है, परंतु इन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को 58,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार गरीबों की हितैषी है। हमारा लक्ष्य राज्य को एक मॉडल के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार मुफ्त में चावल दे रही है। ये नहीं भूलना चाहिए कि उससे पहले यूपीए सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया था। कांग्रेस ने अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून, नरेगा जैसी जनहितैषी योजनाएं लागू की। आज देश में 27 करोड़ लोगों को नरेगा के माध्यम से मजदूरी का काम मिल रहा है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही भाजपा इस माह के अंत तक तेलंगाना में उम्मीदवार घोषित करेगी। पार्टी हैदराबाद सीट से लगातार 4 बार सांसद रहे एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ फायर ब्रांड नेता और महिला मोर्चा की प्रवक्ता नदीमपल्ली कविता पाठक को उतारने की तैयारी कर रही है। भाजपा चुनाव प्रचार में बढ़त लेने के लिए दूसरे दलों के दिग्गज नेताओं को उनके घर में ही घेरना चाहती है। तेलंगाना में हैदराबाद सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से ओवैसी सांसद हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस सीट से पुराने उम्मीदवार भगवंतर राव की जगह कविता को तरजीह दी जा सकती है। कविता ने अपने एनजीओ के माध्यम से जहां मुस्लिम महिलाओं में पैठ बनाई है, वहीं 3 तलाक के मुद्दे पर अपनी मुखरता के कारण राज्य में चर्चा में रही है। जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने रविवार को तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम है। देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां संयुक्त होकर चुनाव लड़ने वाली हैं। जानकारी के अनुसार कई घंटे तक विस्तृत चर्चा की। बताया जाता है कि दोनों पार्टियों द्वारा लड़ी जाने वाली सीटों पर व्यापक सहमति बन गई है। पिछले महीने नायडू और पवन कल्याण ने इस साल आंध्र प्रदेश चुनाव के लिए 2 विधानसभा सीटों के लिए एक तरफा अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने राजनगरम और रजोल निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, जबकि चंद्रबाबू ने अराकू और मंडपेटा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, जिससे कथित तौर पर टीडीपी जेएसपी गठबंधन में दरार पैदा हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को झारखंड के रामगढ़ जिले से फिर शुरू हुई। राज्य में यात्रा का आज चौथा दिन है। कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रवक्ता राजू रंजन ने कहा कि जिले के सिद्धू कान्हू मैदान में रविवार रात को रुकने के बाद यात्रा सोमवार सुबह महात्मा गांधी चौक से फिर शुरू हुई और तुपलू वैली के लिए प्रस्थान किया, जहां राहुल स्वतंत्रता सेनानियों शहीद शेख भिकारी और टिकैत उमराव सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने कहा कि रांची जिले के इरबा पहुंचने के बाद राहुल इंदिरा गांधी हैंडलूम प्रोसेस मैदान में बुनकरों से संवाद करेंगे। दोपहर को बेजनावकाश के बाद यात्रा रांची के शहीद मैदान पहुंचेगी, जहां कांग्रेस सांसद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल ने रविवार को कहा था कि उनकी पार्टी जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने उड़ीसा दौरे के दौरान वहां के पद्म पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, बीते दिन उड़ीसा के अपने दौरे के दौरान मुझे पद्म पुरस्कार विजेताओं से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने जमीनी स्तर पर हमारे देश के लिए समृद्ध योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें हल्धर नाग से मिलकर खुशी हुई, जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, मुझे हल्धर नाग से मिलकर बेहद खुशी हुई, उन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। संबलपुरी और उड़िया साहित्य को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए उनकी अटूट दृढ़ता
और गहन समर्पण बहुत प्रेरणादायक है। साहित्य के प्रति उनका जुनून हमारी भाषाई परंपराओं के लिए गर्व की भावना को प्रज्वलित करता है। इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र से गुजरात तक बवाल मचा हुआ है। भड़काऊ भाषण के एक मामले की जांच कर रही गुजरात पुलिस ने मुंबई से इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी को हिरासत में ले लिया और शाम को उन्हें लेकर चली गई। पुलिस अधिकारी के अनुसार मुफ्ती के सैकड़ों समर्थक उनकी तत्काल रिहाई की मांग को लेकर घाटकोपर पुलिस थाने के बाहर जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए हल्के लाठीचार्ज का सहारा लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुजरात पुलिस की टीम मुफ्ती को लेकर रवाना हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गुजरात के जूनागढ़ की पुलिस ने उपदेशक द्वारा कथित तौर पर दिया गया एक भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इस सिलसिले में 2 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि ये भाषण 31 जनवरी की रात को जूनागढ़ के बी डिवीजन पुलिस थाने के पास एक खुले मैदान में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया था। भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अजहरी और स्थानीय आयोजकों मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब ओडेदरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी और 505(2) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। झारखंड विधानसभा में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संयोजित तरीके से 2022 से पटकथा लिखी जा रही थी। गिरफ्तारी की इस सुनियोजित साजिश में राजभवन भी शामिल था। ये पकवान धीमी आंच पर पकाया जा रहा था। मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, वंचितों के आंसुओं का मोल नहीं। हम लोगों ने सिर झुकाकर चलना नहीं सीखा। आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, वे देश में सुरक्षित नहीं। फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा में हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि सत्ता पक्ष की धरना की ताकत है आज की स्थिति। हम इनके बराबर में आए तो इनके कपड़े मैले होने लगे, ये हमें अछूत मानते। इनका बस चले तो हमें वापस जंगल छोड़ आए। इन्हें लगता है कि मुझे जेल में डालकर ये अपने मंसूबों में सफल होंगे। दोष साबित हुए तो राजनीति छोड़ दूंगा। अनगिनत लोगों ने कुर्बानी देकर आदिवासी दलितों को बचाया है। इनको आदिवासी और दलितों से धरना है। हम सत्ता लोलुपता के लिए भी नहीं आए, आदिवासी के मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी के कारण 475 सड़कें बंद हो गई हैं, जिसमें 5 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार क्षेत्र में बर्फबारी के कारण 333 बिजली आपूर्ति योजनाएं और 57 जल आपूर्ति योजनाएं भी बाधित हुई हैं। जारी आंकड़ों में बताया गया है कि बर्फबारी के कारण चंबा में 56, कांगड़ा में 1, किन्नौर में 6, मंडी में 51 और शिमला में 133 सड़कें बंद हैं। इससे पहले शनिवार को राज्य में 504 सड़कें बंद थीं, जिसमें 4 नेशनल हाईवे शामिल हैं। साथ ही कई जगह बर्फबारी के कारण बिजली आपूर्ति और जल आपूर्ति योजनाएं भी बाधित हो गई थीं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर नगर के फतेह दरवाजा के पास पुलिस चौक का नाम बदलकर इसे पुलिस सेक्शन 1948 सर्कल कर दिया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लगाया केंद्र पर कर्नाटक के साथ कर वितरण में अन्याय का आरोप, कहा करोड़ों का किया नुकसान। शिव कुमार स्वामी को भारत रत्न देने की मांग, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कही ये बात। अधिसूचना से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर सकती है भाजपा, असद ओवैसी के खिलाफ इन्हें बना सकती है उम्मीदवार। झारखंड के रामगढ़ से फिर शुरू हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा, बुनकरों से करेंगे संवाद। धर्मगुरु मौलाना सलमान अजहरी को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार।
केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।